العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ قائلون ولا یحصی نعماته العادون ولا يغذي حقه المستعدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات سامعین حضرات، ہم آپ کی پریشانی کو سمجھ رہے ہیں. سائنس کا یہ کہنا ہے کہ آدمی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ایک موضوع پر زیادہ سے زیادہ 40 منٹ تک سوچ سکتا ہے. اور سلام ہے ان بخشورہ کے لوگوں پر کہ وہ لوگ دوسری مجلس کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے مولانا تو کارڈ بھیجا جاتا ہے. ہماری جب شادی ہو رہی تھی تو ہمارے بہنوئی جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ بہن کے ہسبینڈ کو، شوہر، وہ نخرے دکھانے لگے کہ ہمارے پاس کارڈ نہیں آیا. ہم نے کہا جناب فون تو کیا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کہا نہیں، کارڈ بھیجیے. کارڈ ہمارے یہاں کی رسم، جب خوشی آتی ہے تو کارڈ بھیجا جاتا ہے. ہمارے بہنوئی ناراض ہو گئے، کہا ہم نہیں جائیں گے انوار صاحب کی شادی میں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا ہمارے پاس کارڈ نہیں آیا تھا. اب 2-4 لوگوں کو بھیجا گیا کہ بھیا منا کے لے کے آئیے. لوگ گئے، کہا آپ چلیے، آپ کے بغیر پہلے بیٹا امامہ لگایا ہے، مولانا بنا ہے، آپ آئیے، آپ گھر کے بڑے داماد ہیں، اس گھر میں آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ آئیے. اب بہرحال لوگ گئے، ان کو منا کے. یہ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ شادیوں میں اکثر بہنوئی لوگ نخرے زیادہ دکھاتے ہیں، ہے نا. ان کی ضد تھی کہ کارڈ بھیجا جائے تب ہم آئیں گے، ہے نا. اور اتفاق سے کچھ دن کے بعد انوار صاحب کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو بغیر بلائے وہ بہنوئی آ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ میں کہیں آپ کے ذہن کو یہ چلنا چاہتا ہوں. نہ کارڈ گیا، نہ بلایا گیا. کسی نے خبر کر دیا کہ انوار صاحب کے گھر میں ایک میت ہو گئی تو بغیر بلائے وہ آ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ کارڈ ہمیشہ خوشی میں بھیجا جاتا ہے، غم میں اطلاع کی جاتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجلس کی گئی، ہم کو بلایا نہیں گیا، کیا سمجھ رہے ہیں نا ہماری بھائی؟ اگر شادی ہوتی تو بلایا جاتا. یہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، فرشادہ بچھا کے اعلان کر دیا گیا جو محبت کر رہا ہے وہ آ جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بھیا کارڈ بھیجو، فون کرو، تو بھیا ہمارے ابا کی شادی نہیں ہے، امام کا غم ہے. اگر امام سے محبت ہے تو آ جائیے.
ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو والسلام علیہ، میرے اوپر سلام ہے. کس کی بات کو؟ سورہ مریم آیت نمبر 33 33 یعنی 33 یعنی 33 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ اپنے جناب عیسیٰ کی بات کو نقل کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے والسلام، میرے اوپر سلام ہے، یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموتو، جس دن مجھے موت آئے گی، ویوم ابعثو حیا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. تو پتہ یہ لگا اس آیت سے کہ اللہ کا سلام اللہ کے کچھ خاص بندوں کے اوپر آتا. بات واضح ہو گئی. اب آئیے ہم لوگ محرم میں یوم الخمیس جمعرات کے روز ایک زیارت پڑھتے ہیں جسے زیارت وارثہ کہا جاتا ہے نا. لیکن میں بہت ڈیپ میں جا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہو سکتا ہے میں زبان کی وجہ سے اپنے پیغام کو آپ تک نہ پہنچا پاؤں، لیکن مجھے یاد رکھیے گا یا مت رکھیے گا، لیکن میری مثالوں کو یاد رکھیے گا. جیسے ہی مثال ذہن میں آ جائے انوار صاحب کا چہرہ سامنے آ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہ زیارت کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام. بہت توجہ چاہتا ہوں میں، ایک ایک بات پہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آدم وہ کون سی ایسی، کبھی آپ نے غور کیا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ ساری وارثہ یعنی وراثت. وہ کون سی ایسی پراپرٹی آدم کے پاس تھی، نوح کے پاس تھی، موسیٰ کے پاس تھی، عیسیٰ کے پاس تھی، جس کے وارث امام حسین علیہ السلام بنے. اب آئیے میں انشاءاللہ وقت زیادہ نہیں لوں گا، جہاں تک گفتگو میری پہنچ سکتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ نے آدم کا پتلا بنایا. دیکھو جنت میں رہو، کھاؤ وکلو واشربو. قرآن کی آیت ہے، اپنی طرف سے کہوں اللہ میرا شبر جیسا حال کرے. کلو واشربو، کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن اے آدم، وہ جو درخت دکھ رہا ہے اس کے قریب تک مت جانا. قرآن کہہ رہا ہے فلا تقربا هذه الشجرة. اے آدم جنت میں کھاؤ پیو عیش کرو آرام سے رہو، لیکن اے آدم دیکھو وہ جو جنت درخت دکھ رہا ہے نا اس کے قریب مت جانا. شیطان آیا حوا کے پاس، آگے کہا اللہ نے کھانے سے منع کیا، اللہ نے قریب جانے سے منع کیا. فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا. لہذا آدم حوا کے کہنے میں آ گئے. بات سمجھ میں آئی؟ لوگ بیویوں کا کہنا کیوں مانتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والے. آدم حوا کے کہنے میں، اچھا وہ درخت علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ درخت جناب فاطمہ زہرا سے منسوب تھا. آدم نے ایک پھل کھایا، کہا آدم نکل جاؤ جنت سے. آدم جیسے چلے، آدم رکو، ایسے نہیں، جنت کا لباس بھی اتارو، کپڑا بھی اتارو. آپ ذرا غور کریے، آدم جیسا نبی، انسانیت کا ہدایت کرنے والا پہلا نبی، کائنات کا پہلا نبی، اگر جناب فاطمہ زہرا سے منسوب کیا ہوا ایک پھل کھا لے تو نتیجہ جنت میں رہنے والا نبی بیرون جنت ملت اسلامیہ پورا باغ فدق کھا کے بیٹھے.
के बैठी है, फिर भी कह रही हम जन्नत में जाएंगे। अच्छा, अब मैं ज़्यादा जल्दी क्योंकि मुझे बहुत तवील गुफ्तगू और मुझे नहीं मालूम है कितनी मजलिसें आपके सामने मुझे पढ़ना है। मैं इसी पेशी एतबार से ऊपर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। आदम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। हाबिल ने काबिल का कत्ल किया था या काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था? काबिल ने हाबिल का। माशाअल्लाह, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। क्यों किया? अल्लाह नबूवत का ओहदा, नबूवत का मनसब किसको देने वाला था? हाबिल को। तो काबिल को गुस्सा किस पे आया? तवज्जो चाहता हूं मैं। काबिल को गुस्सा किस पे आया? अल्लाह पर। ये ओहदा तो वो दे रहा है ना, अल्लाह पर। अल्लाह मिला नहीं, किस पे उतारा? अल्लाह वाले पर। तवज्जो चाहता हूं। काबिल को गुस्सा हाबिल पे नहीं आया। क्या हुआ? क्या देखो, उस जमाने में लोग नज़र करते थे। जब ये देखा कि आदम ने दुआ किया, माबूद मेरे 2 बेटे हैं, इनमें से अब तू अगर एक को दे देगा दूसरा नाराज हो जाता, दोनों रखो, मैं तेरे यहाँ नबी तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं जाएगी, दोनों नजर रखो। उस जमाने में जिसकी नजर कबूल हो जाती थी वो चीज जल जाया करती थी, भून जाया करती थी। एक नजर काबिल ने रखी, एक नजर हाबिल ने रखी। अल्लाह ने हाबिल की नजर को कबूल किया, काबिल की नजर को कबूल नहीं किया। तो काबिल को गुस्सा किस पे आया? अल्लाह पर। अल्लाह मिला नहीं तो किस पे उतारा? अल्लाह वाले पर। क्या अभी मिल्लत इस्लामिया को बताना पड़ेगा कि यजीद को गुस्सा किस पे आया था? यजीद को गुस्सा अल्लाह पर आया था। अल्लाह मिला नहीं तो अल्लाह वाले पर था। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हर चीज को गौर करना चाहिए। इंशाअल्लाह कभी जितनी भी मजलिसें मुझे कोई इसी के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। एक होता है, मैं एक छोटे छोटे अल्फाज हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है नबूवत, एक होती है खिलाफत, एक होती है शरीयत, है ना। ये सारी चीजें हैं जनाब। यानी अक्सर लोगों का, नहीं, आज की मजलिस से मुकद्दमा है आने वाली मजलिसों का, इंशाअल्लाह फिर बाद में। ये जो दीन चला, दीन और शरीयत बता दें आपको। दीन, अक्सर लोग ये कहते हैं जितने मौलाना होते हैं उतने फतवे, जैसी पगड़ी वैसे फतवे। तवज्जो चाहता हूँ, जैसी टोपी वैसे मौलवी, वैसा फतवा नहीं। बात क्या है? एक होता है दीन और एक होती है शरीयत। तवज्जो चाहता हूँ, दीन एक है। कभी मौलाना असगर साहब ने ये नहीं कहा होगा कल अल्लाह एक था आज 2 है। किसी मौलवी ने कहा, कभी मौलाना जो मजलिस पढ़ के गए उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अनवार साहब कहे गलत, अल्लाह 2 है। किसी मौलवी ने कहा कि कल अल्लाह आदिल था आज आदिल नहीं है, हैं? अव्वल तौहीद, दूसरे आदिल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत। ये है असली दीन। दीन कभी नहीं बदला, शरीयत बदली है। अब आपको समझा दिया आसान लफ्ज़ में। बात मेरी आप तक पहुंच रही है नहीं? बहुत आसान लफ्ज़ में बता दें। हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए और बनवाने के बाद में 2 कानून, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे ऊपर 2 कानून लागू होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हमारे ऊपर लागू होता है
और एक काउंसिल गवर्नमेंट यानी, और आसान कर दूं मैं, हो सकता है लोग ना, हाई कोर्ट से कानून हमारे ऊपर लागू होता है। काउंसिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होता है, चाहे आप ये कलकत्ता स्टेट का नाम क्या, बंगाल, चाहे आप बंगाल में रहिए, कलकत्ते में रहिए, आपको मानना है। चाहे महाराष्ट्र में रहिए, आपको मानना है। चाहे आप यूपी में रहिए, आपको मानना है। लेकिन इसी जगह पे इत्तेफाक से मौलाना असगर साहब का टेम्परेचर हाई हो गया तो एक आदमी का कत्ल कर दिया। तुरंत आनंद फानंद पुलिस की तरफ से हुक्म आया, कर्फ्यू लगा दो। अब अनवार साहब तो यूपी से आए थे, देखा कर्फ्यू, हमने कहा ये क्या, मुल्क एक कानून दो कैसा। तवज्जो चाहता हूं मैं, बात समझ आ रही है, मुल्क एक कानून ये दो कैसा। तो भाई हर आदमी कहेगा भाई यहाँ इमरजेंसी के तहत हालात को देखते हुए नाजुक माहौल था, लिहाजा यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। नहीं हम जाएंगे, हम ऐसे कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उठा कर सबसे पहले इसको बंद करो, यही जाके। तो अल्लाह के भी दो कानून, एक का नाम है उसूल दीन, दूसरे का नाम है फरोए दीन। तवज्जो चाहता हूं, एक का नाम है उसूल दीन, एक का नाम है फरोए दीन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून कहीं पे नहीं बदलता, यूपी में रहे तो भी मानना पड़ेगा, कलकत्ते में रहे तो भी मानना पड़ेगा, कहीं भी जाए आपको मानना पड़ेगा। उसी तरीके से उसूल दीन, चाहे आदम का जमाना रहा हो, मूसा का जमाना रहा हो, ईसा का जमाना रहा हो, यहया का जमाना रहा हो, जिलकिस का जमाना रहा हो, सब जगह पे एक था। हाँ, फरोए दीन हालात के एतबार से बदला है। भाई घर पे है तो 4 रकात पूरी पढ़िए, सफर में है 4 रकात को 2 पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। घर पे है 4 रकात पढ़िए, सफर पे है 2 रकात पढ़िए, घर पे है पूरा रोजा रखिए, सफर पे है कसरा है, ये सब मिली हुई है शरीयत में। अच्छा, ये दीन चला। अभी आपने मौलाना ये बात कह दिया दीन कहीं नहीं बदला, तो एक बात बताएं, एक बात और आपको बता दें, जो दीन आदम लेकर आए, अल्लाह ने अल-यौमा अकमलतु दीनकुम कहा है, अल-यौमा अकमलतु शरीअतकुम नहीं कहा। तवज्जो चाहता हूं मैं, हमने शरीयत को मुकम्मल नहीं कहा, अल्लाह ने कहा आज के दिन हमने दीन मुकम्मल किया। दीन चला, आदम लेकर आए, मूसा के पास गया, ईसा के पास गया, जुल्किफ्ल के पास गया, दानियाल के पास गया, आदम, इदरीस, नूह, हूद, सालेह, इब्राहिम, लूत, इस्माइल, इसहाक, जिल्किफ्ल, दानियाल, ये होते होते कहाँ पहुंचा, गदूर खून के मैदान में। ये दीन आदम लेके जो आए थे वो सारे नबियों से होता 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 मोहम्मद अरबी के पास आया, फिर उसके बाद मोहम्मद अरबी से गदीर खून के मैदान में पहुंचा। अभी तक दीन एक था, अब जो गदीर से दीन निकला तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक दरबार में गया, एक दरबार में गया, एक अहले बैत के पास आया। जिन लोगों ने दरबार से इस्लाम लिया वो कल भी आतंकवाद थे, आज भी आतंकवाद है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूर बोलेगा कि जो बेसदा है वो ज़हरा जरूर बोलेगा, कभी ना बोलने वाले जरूर बोलेगा। जनाबे मीसा में कम्बर की कसम दे दो यारो, अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा। अली का मुख छुपाने से छुप नहीं सकता, ज़बान ना बोले चेहरा जरूर बोलेगा। जमाना खुल ना पाए मुनाफिकों की नमाज, लेकिन हुसैन की सजदे जरूर बोलेगा। लब्बैक या हुसैन।
अच्छा, अब एक मिसाल है, यहाँ पे कौन सी नदी है? हसनाबाद है, ये जो नदी में आया है, हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो हमारे साथ थे। हम लोग ये सारी नदियाँ निकली हैं, कहाँ से निकली? हिमालय से निकली हैं। तवज्जो चाहता हूँ, मैंने कहा मुझे याद मत रखिएगा, मेरी मिसालों को याद रखिएगा। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकली हैं? हिमालय से। हमने डॉक्टर साहब की कलाई पकड़ी, हमने कहा चलो, लेके गए हिमालय के पास। वो जो हिमालय पिघला, पिघलने के बाद में नीचे आया पानी गंगोत्री से होता हुआ। हमने शीशे के गिलास में वो पानी भरा। हमने कहा डॉक्टर साहब इसको चेक करके बताइए, या पानी पी सकते हैं? डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर निकाला, पानी में डाला, कहा भाई पानी साफ और शफाफ है, हम फौरन पी लिए। डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया। एक सूरत है, जो पानी हिमालय से पिघला, गंगोत्री से होता हुआ नीचे आया, हमने वहीं पे पानी को भरा। भरने के बाद में जब पिया तो डॉक्टर ने नहीं मना किया। अब वो गंगोत्री से होता हुआ कानपुर पहुंचा, कानपुर से कलकत्ता आया। कानपुर में जब पहुंचा तो मीलों का कचरा उसके अंदर मिला। तवज्जो चाहता हूं मैं। फिर जब वो कलकत्ता पहुंचा तो बकचोरा का, नालियों का पानी उसमें जाके मिला। हमने डॉक्टर साहब की फिर कलाई पकड़ी। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए, लेके गए नदी पे। हमने कहा फिर वही शीशे के गिलास में पानी पकड़ा, भरा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये पानी पी ले। कहा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हमने कहा डॉक्टर साहब ये पानी पिए? कहा नहीं। क्यों? अभी इसी पानी को आपने कहा बगैर नापे तुले आप पी लीजिए। वही पानी यहाँ पे आया है, क्यों मना कर रहे? कहा वहाँ पानी में मिलावट नहीं थी। वहाँ पानी में मिलावट नहीं थी, लेकिन जो यहाँ बकचोरा में पानी आया है, यहाँ मिलावट हो चुकी है। भैया वही दीन है, लेकिन जब दरबार में गया, बादशाह की आंखों के इशारे से लिखा गया। अब जो दीन के अंदर मिलावट हुई, तो अब जो दीन पे अमल कर रहे हैं, कोई आतंकवाद बन रहा है, कोई दहशतगर्द बन रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन वही है। अच्छा, एक सूरत हाल ये, क्योंकि ये दीन जब दरबार में गया, बादशाह की आंखों के इशारे से लिखा गया। ये रिवायत को निकालो, इसको रखो। बात समझ रहे हैं ना? ये आयत ये रिवायत हमारे खिलाफ बोल रही है, लिहाजा दरियाए बूट कर दो। ये रिवायत गढ़ के डाली गई। जिन लोगों ने दरबारी इस्लाम लिया वो आज भी आतंकवाद है। अच्छा, एक चीज। दूसरा क्या? हमने डॉक्टर साहब ने क्या किया, बक्सुरा के एक साहब ने कहा ठीक है मौलाना, मिलावट नहीं होने देंगे, इसकी जमानत मैं लेता हूँ। हमने कहा वो कैसे? एक प्लास्टिक की ट्यूब में, वो जो गंगोत्री से पानी आ रहा था, प्लास्टिक के ट्यूब में लेके हम बक्सुरा में लेके आ गए। अब हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये पानी पी लें। कहा बेशक पी सकते हैं, क्योंकि मासूमियत के ट्यूब में ढल के आया है। समझ रहे ना? मासूमियत के ट्यूब में ढल के आया है। बाहर की गलाजत इसमें शामिल नहीं हुई है, बादशाह का इशारा इसमें शामिल नहीं हुआ है, नीलों का पानी इसमें शामिल नहीं हुआ है, नालियों का पानी इसमें शामिल नहीं हुआ। लिहाजा बेझिझक पी लो। अब जिन लोगों ने अहले बैत से लिया है, उसकी जमानत कुरान कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स। हमने अहले बैत को ऐसा मासूम बनाया जो भी इनसे लेगा मिलावट नहीं होगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब बात समझ नहीं आई? जिन लोगों ने इस्लाम को अहले बैत से लिया है, वो कल भी सुरखरू थे, आज भी सुरखरू है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक सुरखरू रहेंगे। जिन लोगों ने इस्लाम को दरबार से लिया था, वो कल भी आतंकवाद थे, आज भी आतंकवाद है, क़यामत तक आतंकवाद के नाम से पुकारा जाएगा। आतंकवाद इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करूंगा।
आतंकवाद कहते किसको, दहशतगर्द कहते किसको, कभी आपने गौर किया? आतंक से जो आतंक फैलाए, जिसको ये तमीज ना हो कि बच्चे मर रहे हैं कि जवान मर रहे हैं, बूढ़ा मर रहा है, हर आदमी उससे खौफ खाया हुआ, उसे कहते हैं आतंकवाद, आतंक फैला। दहशतगर्द इसे कहते हैं जिससे लोग खौफ खाए। यजीद से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं, यजीद से बड़ा कोई दहशतगर्द नहीं। मेरे अजीजों, दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, मुझे मालूम है मुसलसल आपको वीडियो उतारनी चाहिए। मेरे अजीजों, मेरा दिल ये चाहता है कि एक ऐसे बच्चे का नसायत करूं जिसको करबला में एक बार नहीं 3 बार शहीद किया गया है। दुआ करिए कि मैं ये तीनों, एक शहीद करबला में ऐसा है जिसको 3 बार शहीद किया गया है। एक दफा हुसैन के बाजू तीर, दूसरी मर्तबा जब सर शुमार किए जाने लगे थे, यजीद की तरफ से हुक्म आया कि मैंने कत्ल करवाए हैं 72, सर 71 की हैं। 40, एक रिवायत 40 नेज़ा पैदा, दूसरी रिवायत 20 नेज़ा पैदा। मेरे अजीजों, मेरा दिल ये चाहता है कि एक ऐसी माँ का मसायब कहूँ जिसकी करबला में कोख बिंजड़ी थी, मांग बिंजड़ी थी। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों की उम्र दराज करे। दीदी रबाब कहती हैं, जब मेरे बच्चे का अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो तो 10 मुहर्रम को जब अज़ादार अपने दरवाजे की तरफ से गुजर रहे हों, जिसको दूध हो दूध, पानी हो पानी, अपने दरवाजे पे खड़े होके मेरे 6 महीने के बच्चे के नाम पे किसी भी अज़ादार को अगर पानी पिला दे, मैं समझूंगी मेरा असगर ने पानी पी लिया। अजीजों, करबला तो बहुत मुश्किल सहा। जनाब अली असगर अल्लामा दरबंदी वो लिखते हैं कि मछली की 3 कैफियत होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे मछली की 3 कैफियत होती है। एक कैफियत ये होती है जब पानी से निकाल लिया जाता है, मछली तड़पती है। उसके बाद जब कुछ देर तक पानी नहीं मिलता, मछली बेआब-ताब हो जाती है, तो कभी इधर गिरती है, कभी इधर गिरती है, कभी इधर गिरती है, कभी इधर गिरती है। जब फिर भी पानी नहीं मिलता, तीसरी कैफियत बयान करते हैं, जब फिर भी पानी नहीं मिलता तो मछली आसमान की तरफ कभी मुंह को खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। करबला में रबाब के बेटे पर ये तीनों कैफियत वारिद हुई थी। जज़ाकल्लाह इन आवाज़ों पर है। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे। मुझे नहीं मालूम कहाँ से मैं मज़ाक शुरू कर रहा हूँ। अहले मकातिब लिखते हैं, ये काफिला कैद करके लेके जाया जाने लगा। वादी रमला से गुजारा जा रहा था। एक ज़ईफ़ा जिसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, उसकी ये पलकें नीचे आ चुकी थी, गिर चुकी थी। 40 कनीज़ों के झुरमुट में देखा काफिला आ रहा है, 40 कनीज़ों को लिया, कहा यह किसका काफिला है कि सारे सर नेज़े के ऊपर रखे हुए। करीब आई, आके कहा ये किसका काफिला है, इन लोगों को क्यों कत्ल किया गया है? एक जालिम आगे बढ़ के कहता है ये बागियों का काफिला है, इन लोगों ने हुकूमत से बगावत किया था। कहा अच्छा, आगे गई, कहा
कहा ये किसका सर है? एक जालिम आगे बढ़ के कहता है ये नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज नहीं पढ़ता। कहा सर नीचा कर, नेज़ा नीचे किया, सर को हाथ में लिया, लेने के बाद में पेशानी पे सजदे का निशान देखा, रो के कहती ऐसा लगता है कि तूने सजदे की हालत में ज़िबा किया है। और आगे गई, कहा ये किसका सर है? कहा ये बादी के बेटे का सर है। कहा सर नीचा कर, नेज़ा नीचे किया, सर को लिया, कहा अल्लाह जाने किसकी जवानी उजाड़ के आए हो, ऐसा लगता है इसकी माँ को शादी का बहुत अरमान रहा होगा। और आगे गए, कहा ये किसका सर है? कहा ये अवन का सर है। कहा ये किसका सर है? कहा ये मोहम्मद का सर है। ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। एक मर्तबा ज़रीफ़ा ने रुमाल से अपनी पलक को उठाया, नेज़ा बड़ा था, सर छोटा सा रखा था। करीब गई है, जाने के बाद में कहा हुरमुला ने उठा रखा था वो नेज़ा बड़ा था, सर छोटा सा रखा हुआ था, नेज़े को नीचे कर। हुरमुला ने नेज़ा को नीचे किया, एक मर्तबा नन्हे से सर को लिया, लेने के बाद में अपनी रिदा से असगर के आंखों से खून साफ किया, हुरमुला का गिरबान पकड़ा, 4 चक्कर लगा के कहा क्या ये भी बाकी था, ये भी बाकी था। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, अल्लाह के बच्चों को सलामत रखे। बीबी रबाब आइए पुरसा लीजिए। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ये बीबी आइए अज़ादार पुरसा दे रहे हैं। अज़ादारों, आपने माँ की कैफियत देखा? मैं तस्वुरात पढ़ने का आदी। आपने माँ को देखा है? माँ कैसी सोती हैं? जब किसी माँ की गोद में छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ अपने हाथ सर के नीचे रख लेती है और एक हाथ बच्चे के सीने पर रखती है। मुझसे नहीं, अपनी माँ से जाके पूछिएगा आखिर ये माँ ऐसा क्यों करती है, तो माँ यही जवाब देगी, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा रात में सोते वक्त डरता है। अरे बीबी रबाब जब जिंदान में, अरे जब सोते थे, मौला कोई गम दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा। अहले मकातिल लिखते हैं जब जिंदान में सारी बीवियां कैद की गई हैं, रात को शहजादी ज़ैनब रात को क्या देखती हैं? भाभी रबाब रात को सोते सोते जमीन पर कुछ ढूंढ रही थी। आंखें खोला, कहा भाभी आखिर क्या ढूंढ रही हो? अरे रबाब ने आंखें खोली, ए शहजादी, अरे मेरा बच्चा सगा अभी तो मेरे बगल में सोया था। ए शहजादी, मौला कोई बस अदादार बानी मसाइब बानी मजलिस। अब मैं करबला का मसाइब शुरू कर रहा हूँ। शाम में गरीबा आई है, अब्बास मार डाले हैं। अजीजों, पढ़ लेना बहुत आसान है, सुन लेना बहुत आसान है। सारी बीवियों की चादरें नेज़े से नहीं उतारी गई थी, सारी बीवियों की चादरें खींची गई थी, लेकिन एक शहजादी ज़ैनब है जिसकी चादर खींची नहीं गई थी। नेज़े की नोक को ज़ैनब के सर में चिबो के अरे जालिम ने जैसे नेज़ा बुलंद किया, अब्बास मेरी चादर। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा। अहले मकातिल लिखते हैं, बस चंद मिनट उसके बाद रहमत तमाम। खैमे जल चुके हैं, बीवियां जली हुई कैनात के पास आकर बैठी हुई हैं, और एक मर्तबा यजीदियों में जब सर शुमार किया जाने लगा
हुक्म आया, मैंने कत्ल करवाए हैं 72, सर 71 क्यों है? इतना जुमला कह के 40 नेज़ा बरदार, एक रिवायत 40 नेज़ा बरदार, दूसरी रिवायत 20 नेज़ा बरदार घोड़े पर बैठे हैं। अजीजों, इधर अकबर का लाशा पड़ा है, इधर हुसैन का लाशा पड़ा है, फुरात पर अब्बास बाजू कटाए सो रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, एक हू का आलम है। 40 नेज़ा बरदार घोड़े पर बैठकर करबला की जमीन जहां नर्म दिखती थी ना, जमीन पर नेज़ा मार देते थे। अज़ादा लोग कैसे ये मसाइल सुनेंगे? अल्लाह मुझे ताकत दे दे, मैं ये जुमला आपके सामने इंशाअल्लाह फिर आगे पढ़ूंगा। 40 नेज़ा बरदार घोड़े पर बैठकर जमीन में जहां नर्म दिखती थी ना, वहां पे नेज़ा जमीन पर मार देते थे। खैमे पे फिजा ने देखा अंधेरे के अंदर कुछ घुड़सवार दौड़ रहे हैं। कहा, अम्मा रबाब तेरे बच्चे की खैर। अरे रबाब ने देखा एक जालिम जो ने नेज़ा मारा, अरे असगर के सीने में बेवक्त हुआ। अब जो नेज़ा खाचा, नेज़े में असगर का लाशा उलझ कर बाहर आया। ए रबाब, अर्जुलुकुम अल्लाह, अल्लाह कोई बनना दे सिवाय गन्ने सैयदुल शुहदा के। अज़ादारों में मसाइब को खत्म कर देता। 2 शहादत हो चुकी है, तीसरी शहादत ये है, एक मर्तबा नन्हा सा लाशा नेज़े के नीचे लटक रहा था। जालिम ने 6 महीने के लाशे को लिया है, एक हाथ से लाशा पकड़ा, एक हाथ से नेज़ा पकड़ा, नेज़े को खींच के पीछे फेंका, असगर के लाशे को जमीन पर रखा, घुटने को तोड़कर असगर के सीने पर। जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम दे सिवाय गन्ने सैयदुल शुहदा। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। घुटने को तोड़कर असगर के सीने पर रखा, एक हाथ से असगर के बालों को पकड़ा, तलवार को निकाल कर असगर के गले को काटा। अज़ादारों मसाइब को खत्म कर देता। अरे सुर कौन से प्रकार का